माँ कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं है, वो जो पहाड़ के ऊपर है वो नीलाचल पर्वत कहते हैं हम लोग। तो नील पर्वत जो है, नीलाचल पर्वत इज़ द बॉडी ऑफ सदाशिवा। इनफैक्ट देर आर डिफरेंट तांत्रिक schools that have different मान्यताज with respect to the temple. That hill itself is the deity एक तरह से। तो सदाशिव के ऊपर कामाख्या देवी विराजमान है, तो दैट हिल बिकम्स वेरी सीक्रेट टू द एक्सटेंट जब कोई भी पूजा, नॉर्मल पूजा भी होता है वहाँ पे, तो संकल्प में ये माना जाता है, वो नीलाचल पर्वत ये शब्द आता है कि दिस इज़ द पर्वत, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीनों के स्वरूप हैं इनके अंदर पहाड़ के ऊपर, और उनके ऊपर जो है भगवती बैठी हुई है। कामाख्याज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट देयर इज एन अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ वाटर, और दैट वाटर कम्स आउट विद द गर्भगृह। तो गर्भगृह में ज़्यादातर 10 महाविद्या के मंदिर है, यहाँ पे 5 शिव मंदिर भी है, भैरव मंदिर है, इत्यादि बहुत सारा है। तो इट इज़ नॉट अ मूर्ति, तो एक तरह से माँ कामाख्या को निराकार स्वरूप माना जाता है। तो वो जल का स्रोत जो है वो ही देवी का मेन शक्ति का ऊर्जा है। Namaskar, welcome to another edition of my sit-down sessions in Sangam Talks with eminent people. Today we have Rajrishi Nandi. He needs no introduction, especially after all the beer biceps conversations. Namaste. Rajrishi has been, I don't know if I should call him a friend, but we've known each other for many, many years. Nervously so, if I may say, because of all Tantra, at least going back 4-5 years. And later I became more aware and used to his ideas. So today we are basically going to be talking about Kamakhya. Rajrishi has filed a PIL, first in the Supreme Court and now in Guwahati High Court. So we are going to learn more about that and why it is important, and why do Hindus need to firstly understand what this PIL and what this court case is about, and why we should be putting our weight behind this. राजर्षि जी नमस्ते। तो पहले प्लीज़ बताइए हम सबको, और हिंदी इंग्लिश में दोनों में बात करते हैं, कि वो फर्स्टली व्हाट इज़ द केस अबाउट। ओके, जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय माँ तारा। As we know that there is already there are corridor projects that are happening in various places. तो एक तरह से डेवलपमेंट के हिसाब से भी बन रहा है, एंड सिमिलरली द गवर्नमेंट हैड प्लान्ड टू मेक अ कॉरिडोर इन कामाख्या एंड रीडेवलप द स्पेस एट्सेट्रा। तो एकदम सिंपल सा ये लॉजिक था कि माय आइडिया वाज दैट व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज कमिंग आउट इनिशियली लास्ट ईयर, ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग देयर वाज नॉट मच नॉलेज एक्सेप्ट कि there were some tweets by the CM and PM and etc. Ki there's a 3D model that was available for everybody in the Twitter timeline. Is that on Twitter only? Is Yeah, that yeah. an official model? Official model. Official model. Yes, this was around I think March or April of 2023 when it was tweeted. I don't remember the exact date. And tweeted by? By the CM of the state. CM and I think PMs, everybody, the larger the political individuals were all there, etc. तो वो मॉडल जब when I was looking at it as a lay individual, and I've been going to Kamakhya Pitha for a long time, that is sort of in a way कि my Ishtha Devi is माँ कामाख्या, so I worship her. So I've gone there many times, and जो भी वहाँ पे गए होंगे तो उनको एक बेसिक आइडिया तो होगा कि जगह का कैसा है. So when I saw that, the first impression I got was that there's a lot of developmental activities that are going to be done, a lot of construction activities that are going to be done, and this is heavy construction, this is not small level construction. That heavy construction is very likely to cause some kind of structural damage to the hill. तो कामाख्या ऐसा है कि कामाख्या, पहला ये जानना ज़रूरी है कि माँ कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं है, वो जो पहाड़ के ऊपर है वो नीलाचल पर्वत कहते हैं हम लोग। तो नील पर्वत जो है, नीलाचल पर्वत इज़ द बॉडी ऑफ सदाशिवा। इनफैक्ट देर आर डिफरेंट तांत्रिक schools that have different मान्यताज with respect to the temple. तो वो दैट हिल इटसेल्फ इज द डेटी एक तरह से। तो सदाशिव के ऊपर कामाख्या देवी विराजमान है, तो दैट हिल बिकम्स वेरी सीक्रेट टू द एक्सटेंट जब कोई भी पूजा, नॉर्मल पूजा भी होता है वहाँ पे, तो संकल्प में ये माना जाता है, वो नीलाचल पर्वत ये शब्द आता है कि दिस इज़ द पर्वत, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीनों के स्वरूप हैं इनके अंदर पहाड़ के ऊपर, और उनके ऊपर जो है भगवती
बैठी हुई है। और ये एकदम दिस इज नॉट समबडीज इमेजिनरी यू नो कंसेप्शन, बिकॉज इन तंत्र दिस इज पर्टिकुलर आइकोनोग्राफी दैट हैज़ मान्यता। हाँ, तो वो उस हिसाब से ये है। तो नाउ द अदर थिंग इज कामाख्या's most important aspect is that there is an underground stream of water और that water comes out with the गर्भगृहs। तो गर्भगृह में ज़्यादातर 10 महाविद्या के मंदिर है, यहाँ पे 5 शिव मंदिर भी है, भैरव मंदिर है, इत्यादि बहुत सारा है। तो इट इज़ नॉट अ मूर्ति, तो एक तरह से माँ कामाख्या को निराकार स्वरूप माना जाता है। तो वो जल का स्रोत जो है वो ही देवी का मेन शक्ति का ऊर्जा है। बट वहाँ तो मंदिर भी है। मंदिर तो बाद में बनाया हुआ है, बट द मेन थिंग देयर इज अ केव। So the main source of worship of, if the mandir was not there, It is the the cave जी, जी. is the Yes. place of the तो sadhana. बेसिकली मेन मंदिर में आप जाएंगे तो देयर इज अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आप गुफा के अंदर चलेंगे तो इट्स डार्क केव, सम स्मॉल लाइट्स विल बी देयर, द प्रीस्ट विल बी सिटिंग देयर, और वहाँ पे एक नेचुरली फॉर्म्ड योनी शेप है। अंधेरे में लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि इट्स नो आर्टिफिशियल लाइट इज अलाउड, सो ओनली नेचुरल लाइट्स आर पुट इनसाइड। और वहाँ पे जाके देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लोट ऑफ वाटर फ्लोइंग, द पीपल टच दैट वाटर, टेक अ बिट ऑफ दैट वाटर एंड दे कंज्यूम दैट वाटर, अपने सर पे ऊपर छिड़कते हैं। वही है प्रणाम, वही है देवी का पूजा का बेसिक आइडिया फर्स्ट। तो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट इन द मेन टेम्पल, जितने महाविद्या मंदिर है, शिव मंदिर, सब में ही पानी का स्रोत जाता है गर्भगृह में। वही वाला एक interconnected एग्जैक्टली इंटरकनेक्टेड वाटर सिस्टम अंडरनीथ कहीं पे पहाड़ में है। तो मेरा पहला आइडिया वाज दैट व्हेन आई सॉ द 3D मॉडल कि इतना हेवी कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो इट इज़ लाइकली टू कॉज डिस्ट्रप्शन टू दैट फ्लो ऑफ द वाटर, एंड दैट फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव वुड बी वेरी डिजास्टर्स। कि वही जो है जगह का मेन शक्ति वही है। वो पानी अगर रुक जाता है कहीं पे, वो जल का स्रोत अगर उसमें कुछ भी रुकावट आता है या इट thins out somewhere, then it can have spiritually lot of negative consequences. almost temple desecration. एक तरह से वही मान लीजिए डेसिक्रेशन ही है। Desecration. वही चाहे इंटेंट से हो या बेवकूफ़ी से हो, Yes, yes, स्टुपिडिटी से हो, yes. इवेंचुअल आउटकम वही होने Correct. वाली है। तो आपका केस इज टू प्रिवेंट दिस। So when I got together 10-15 people who are all devotees of Maa Kamakhya from across India, तो आते रहते हैं मंदिर में, and our main petitioner is from Guwahati. She is Mrs. Geetika Bhattacharya. She is from Guwahati. तो our first PIL was that basically asking the government कि ये हमारा anxiety है, given that this is the situation, और आपके जितने available documents है, all whether it's the so work order and everything was passed on to the L&T by the month of January. Are we sure about it? Yeah, we have presented it to the court. This L&T order is Yes, it's Okay. So work almost order a is 400 crore project. Okay, every details of even the architectural details of क्या construction होने वाला है, सब कुछ already is there in the official public domain. And do we know at all if L&T has any competence in doing any temple restorative or cultural restorative work? To my mind, no. To my mind, no, but they are, in fact, the L&T lawyer is also present in the courts these days for because of the arguments. So the biggest concern दो चीज़ था हमारा तरफ से. See, we filed a PIL first of all asking as a white paper कि आप जो ये चीज़ कर रहे हो, हमारा anxiety as a devotee, these are the things, how are you going to address that? Can you give some clarity? To that effect, we filed close to 30 RTIs in the last year, around I think August, September, उस समय पे 30 RTI from different parts, people who are devotees of Maa Kamakhya. और basic question यही था कि ये जो जल का स्रोत है, इसको आप कैसे, what measures are you taking? And there was not one convincing reply. ज़्यादातर रिप्लाई ऐसा था कि इस डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, ये हमारा काम नहीं है, दूसरा बताएंगे, ये बताएंगे. And then the work order came out, everything came out in Feb, I think beginning of this year. The Prime Minister, Honorable Prime Minister himself came for an inauguration and कि यहाँ पे ये एक टूरिज्म का जगह होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म होगा, एक गेटवे बनेगा नॉर्थ ईस्ट का, etc. etc. But the basic concerns were not addressed anywhere. So that is when we were sure that only way we can get any relief, if at all, is through the legal route. कोर्ट में जाना ही पड़ेगा. तो हम लोग का ये आर्गुमेंट नहीं था कि डेवलपमेंट मत करो, हमारा ये था कि ये जो लॉजिक है पहले आप समझाओ कि हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस दीज फैक्टर्स. So that's why we kind of went to the court. That was one PIL. At same time, after few months, I think around the month of March, there was another writ petition filed. This was filed by, this is not, I am not a part of that, this is filed by one of the pandas, Mr. Nabajyoti Sharma, and the basis of that petition was that यही है कि वो जो पानी का स्रोत है इत्यादि है वो affected होगा, तो that affects the fundamental right to worship and religion.
So both the cases are there, Running and both parallelly. in the Guwahati High Court. Go both in the Guwahati High Court. तो अब you know, for the benefit of people to understand, um, okay, let me step back and basically ask. See, I just went to Kashi Vishwanath, and please excuse me if I make arguments which are against, which go antithetical to the current case. I just went to Kashi, और मैं पहले भी गया हूँ. Honestly बताऊँ तो मेरा अभी का experience बहुत ही अच्छा था. पूरा गंगा जी पे जाते हैं, वापस आओ और सब कुछ. और मैं आसपास ये देख रहा था कि परेशानी कहाँ पर है हिंदू साइड में. ठीक, कुछ टेम्पल्स भी थे जो आसपास. मेन काशी टेम्पल है, ऑफ कोर्स हमारी सामने मस्जिद है, वहाँ खड़े होके एक फ़ोटो भी नहीं लेने देते, निकलो. कहते हैं पता नहीं मैं क्या बिगाड़ दूंगा उनका. पूरा मंदिर तोड़ के मंदिर की दीवार पे गुंबद बने हुए हैं. एनीवेज, सो बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. हाँ, कॉरिडोर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जूते पहन के जा रहे थे. फॉर एग्जांपल कुछ बात थी कि मंदिर कॉम्प्लेक्स में जूते नहीं पहनने चाहिए क्योंकि बहुत सारे छोटे मंदिर हैं, मगर उसके सीढ़ियों पे कोई जूते पहन के नहीं चढ़ रहा, सब नीचे उतार के ऊपर जो छोटे मंदिरों में जा रहे हैं. ये एक आर्ग्यूमेंट है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा बना हुआ है. कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैंने सुनी है ट्विटर पे एंड एल्सवेयर कि नहीं जी वो हमारी गलियां रहनी चाहिए थी. राजेश जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ गोदावरी का. नासिक में जहाँ पर कुंभ भी लगता है, कालाराम टेम्पल के पास में, वहाँ पर हालत ख़राब है. बोथ ऑफ द रिवर एंड ऑफ द अप्रोच टू द रिवर, मतलब डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, 100 साल पुरानी, तारें लटकी हुई हैं. कब आग लग जाएगी ना और कब वो पूरे मार्केट भस्म हो जाएगी ये नहीं पता. बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है. और ये हर जगह हालत है. त्र्यंबकेश्वर जाओ, श्योर द कॉम्प्लेक्स इज़ क्लीन, बट वो फिर देन यू नो यू गेट इनटू द गवर्नमेंट के थिंग्स, शॉप्स जो पागलों की तरह बेच रहे होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जनरल जनता को ये लगता है कि बहुत अच्छा बना है, क्यों नहीं गवर्नमेंट को आने दिया जाए और इम्प्रूव करा जाए सब डिवोटीज़ का एक्सपीरियंस. तो इसमें दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं आपसे जो आपके बारे में पढ़ के, कि एक तो श्योर डिवोटीज़ होंगे जो मेरे जैसे अनपढ़ डिवोटीज़ होंगे, लेकिन क्या कामाख्या मेरे जैसे अनपढ़ डिवोटीज़ के लिए है भी कि वहाँ जाकर, या आप जैसे जो बहुत ही डेडिकेटेड तंत्र वर्शिप में लोग हैं उनके लिए. मैं इस बात पे इसलिए आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपका जो नोट पढ़ा उसमें आपने लिखा हुआ है दैट दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर, देयर इज़ ओनली सो मेनी पीपल दैट कैन गो इनटू द गुफा जहाँ पर पानी का स्पर्श हो सकता है. यू कांट हैंडल लार्ज पॉपुलेशंस. सो शुड देयर बी थ्रॉटलिंग और नो एंड कंटिन्यूड? So बड़े सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं, बट इफ यू कैन delve upon so them. I'll go straight to the first one, कि काशी के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है. तो let me clarify this, and this has been asked to me even privately also. तो काशी मैटर में मेरा नॉलेज आई हैव इज़ ओनली फ्रॉम अ सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव. उसके डेप्थ में मेरा नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है. आई हैव हर्ड बोथ साइड्स. देयर पीपल हु हैव सेड कि बहुत अच्छा हुआ है, एंड पीपल हु हैव सेड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डेसिक्रेशन दैट हैज हैपेंड. आइदर वे मैंने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है. माई ओनली हम्बल सबमिशन इन दिस मैटर इज़ दैट कि काशी के जो मैटर है और कामाख्या के मैटर एक नहीं है. क्यों एक नहीं है? क्योंकि काशी में, एंड आई एम अगेन क्लैरिफाइंग कि ये काशी कॉरिडोर अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हैवंट गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. मेरा जो नॉलेज है वो ऊपर ऊपर सोशल मीडिया वाला नॉलेज है. हो सकता है कि अच्छा हो सकता है नहीं हुआ है. बट इन थियोरी काशी में, सो देयर इज़ अ विश्वनाथ जो भी है मंदिर है, एक आध, नॉट जस्ट वन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ शिवलिंगर्स एंड ऑल दैट. सो इन थियोरी, इन प्रिंसिपल ये पॉसिबिलिटी है कि कल जाके आपको कुछ काम के लिए आपका जो मंदिर वहाँ पे एक जगह पे सिचुएटेड है, उसको विग्रह को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उस जीर्णोद्धारण का पद्धति आगम शास्त्र में बाकी जगह पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है. In theory, it is possible to have कि suppose there is a Shivalinga here, I will shift the Shivalinga to another place. In theory, it is possible, suppose there is a sacred tree here somewhere, I can replant that tree in some other place with proper, with the Vidwans and the Pandits doing it, not a layman's job. लेकिन हो सकता है. क्या ये हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं. Whether the government has actually done this or not done this, that I really do not know. I cannot comment. No, but the main temple has not been moved at all. Right. That the Shivling is there. Of course, the Swayambhu. This is not the Swayambhu Shivling. That is inside the mosque. वो तो मस्जिद के अंदर है. But my basic point is that कि in principle ये चीज़ हो सकता है. ठीक है, हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं.
कामाख्या के मैटर पूरा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि कामाख्या का जो जल का स्रोत जो मैं बता रहा था, ये एक तरह से स्वयंभू चीज़ है। ये दिस इज़ नॉट अ शिवलिंग, इज नॉट अ विग्रह ऑफ ए देवता। तो मेन माँ कामाख्या का जो मंदिर है, वहाँ पे गर्भगृह में एक गुफा है, उसके थोड़ा पहले एक देर आर मूर्तिज ऑल्सो, देर आर मूर्तिज ऑफ कामेश्वर, कामेश्वरी, चामुंडा, शीतला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस मूर्ति को अगर किसी को शिफ्ट करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विधि विधान से कर सकते हो। लेकिन जो स्वयंभू चीज़ है शास्त्र के अनुसार, यू कैनॉट चेंज दैट। इट्स बेसिक स्पिरिचुअल कॉमन सेंस। आज कल जाके आप अगर बोलते हो कि अमरनाथ को जो गुफा है, वहाँ पे जो नेचुरल फॉर्मेशन जो शिवलिंग का बन रहा है ना बर्फ से, हाँ वो हम लेके आते हैं दिल्ली, हम बना देंगे दिल्ली में, कुछ थोड़ी होगा, वो तो वही का होगा। तो उस दैट इज द हार्ट ऑफ दैट एरिया। वो हार्ट को आप नेचुरली, और ये इन दिस रिगार्ड्स लेट मी मेंशन दैट स्पेसिफिकली इन द शाक्त धर्म, शक्ति उपासना के जो पद्धति और धर्म है, इसमें जितना शक्तिपीठ वगैरह है, एंड यू विल सी लार्ज नंबर ऑफ देम इज कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया ऑल्सो। बहुत सारे हैं, बंगाल, असम, बिहार इत्यादि, ये सब पूरा ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे, बांग्लादेश में भी था, अभी तो है नहीं। सो दीज हैड सर्टन नेचुरल जोग्राफिकल प्रोपेंसिटी ऑफ दैट एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शक्तिपीठ है, कुछ तंत्र में इतना ये भी मेंशन किया हुआ है कि एक जगह पे जहाँ पे कोई उत्तरवाहिनी नदी है, जो नदी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, चाहे वो जाए या ना जाए, आपको लगना चाहिए रिलेटिवली कि गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। उत्तरवाहिनी नदी है, पूर्वपृष्ठ भूमि है, अर्थात जो टॉर्टोइज बैक, टॉर्टोइज के जो कूर्मों के पृष्ठ है, वैसे वाला एक एलिवेटेड लैंड है, उसके पास में देयर इज अ क्रिमेशन ग्राउंड। ये कॉन्फ़िगरेशंस जिस जगह पे मिल जाता है, वहाँ पे शक्ति विल ऑटोमेटिकली कम देयर, यू स्टार्ट वर्शिपिंग। तो आई एम गिविंग वन एग्जांपल। माय पॉइंट इज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग prevalence of understanding the natural geography of a place when it comes to शक्तिपीठs and certain aspects of temples. कामाख्या में भी वही है। वो कामाख्या का जो शक्तिपीठ जो है, वो जो नीलाचल पर्वत है, उसमें जो पानी का स्रोत है, वो आप कहीं पे नहीं बना सकते हो। मैं नहीं बना सकता, आप नहीं बना, कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो दैट इज हाउ इट इज। सो दैट इज वाई So this is not a typical temple जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके yes प्राण प्रतिष्ठा, ये तो स्वयं, इनफैक्ट इट इज सो ओल्ड कि जब तंत्र शास्त्र was not even compiled या written down, जो वो एक तरह से तंत्र तो आया है शिवा एंड पार्वती कम्युनिकेशन से, वो तंत्र आते हैं, ऋषियों से आते हैं, मास्टर्स से आते हैं, फिर शिवा। तो वो जब तक मनुष्य तक नहीं पहुंचे, उसके पहले से देवी इज देयर। शी डिसाइडेड दैट शी वांट्स टू बी इन दैट पर्टिकुलर हिल एंड शी विल बी देयर। दैट इज व्हाट इट इज। वी गो देयर एज डिवोटीज। अभी ये है आपका पहला क्वेश्चन का जवाब कि क्यों ये कामाख्या और काशी में थोड़ा अंतर है। दैट इज वाई माई कंसर्न वॉज कि वो चीज़ तब शिफ्ट नहीं कर सकते। और जब सो यू आर ओके विद डेवलपमेंट एज लॉन्ग एज द वाटर सोर्स और जो सारा इंटरकनेक्टेड चैनल्स पानी के हैं विच आर ऑफ डिवाइन नेचर, वो इंटरवेंशन ना हो। करेक्ट। You have no problems with making जो कॉरिडोर बनाना है, जो भी करना है। Exactly. And I am assumed that the argument is that क्योंकि ये नीलाचल पर्वत पे है, तो अगर आप पर्वत पे कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करोगे तो naturally by default you will end up doing interventions with the water stream. When I saw some of the, I means my team of people and all that, हम लोगों ने जब वो डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियली गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट का डॉक्यूमेंट है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई आके कुछ दे रहा है या अलग नहीं, दिस आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड फॉर एनीबडी, द स्पेसिफिक engineering documents, architectural documents. तो more or less when I got it vetted through other engineers, neutral engineers, तो उन लोगों ने बोला कि जो methodology दिया गया है उसमें at least 20 feet digging with the piling method needs to be done on the hill. अभी जो plans create a base of कुछ भी जो भी एक स्ट्रक्चर बनाना है etc and all these things. So 20 feet piling में अगर आप कर रहे हो तो एक तो common sense है, it is very likely to affect the water stream somewhere. और water stream का तो आपको पता ही नहीं है पहले कहाँ पे mapping हो रहा है. Without the mapping, so finding the map hydrological structure is step 1. Construction should be step 10, जो भी है एंड में। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का सब कुछ बन गया है, आर्किटेक्चर ये हो गया है, टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप दे दिया, सब कुछ हो गया, अभी तक आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। एट द बेयर मिनिमम मुझे जो लगता है कि अगर किसी की भी बुद्धि अच्छी ठीक से इस प्रोजेक्ट को करना है विद प्रॉपर रेस्टोरेशन के साथ, with proper sanctity maintain करके, तो even for environmental factors water की preservation, water के channels की preservation करनी पड़ेगी, even for that. I completely agree with you, and that is why our first petition was actually, it is not an adversarial petition also. पहले हम लोगों को जो PIL फाइल किया
इट वॉज जस्ट आस्किंग फॉर अ वाइट पेपर, दैट्स ऑल. वाइट पेपर का अर्थ है कि आप समझाइए कि ये हमारा एंग्जाइटी एज अ डिवोटी, यू एक्सप्लेन टू अस दैट व्हाट यू आर डूइंग, एंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आई हैव अ राइट टू आस्क दैट. ठीक है, अब मैं ये तो एक बार नहीं बोल रहा हूँ कि अभी डेवलपमेंट मत करो. यू आर द गवर्नमेंट, यू हैव द मनी, यू हैव द पीपल, यू फाइंड अ मेथड टू डू इट. अगर नहीं होता है वहाँ पे तो पहाड़ के नीचे आप करिए ना, 10 मंजिल का वहाँ पे आप शॉपिंग मॉल बना दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. नोबडी हैज़ एनी. तो देन दिस आर्गूमेंट वाज सेड दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. पूरा स्टेट में आपको वही पहाड़ के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिला है. आई मीन दैट इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग आई हैव एवर हर्ड. नीचे बहुत कुछ कर सकते हैं. इट्स नॉट इवन ए ह्यूज, ये हिमालय नहीं है, हिलॉक है. राइट ऑन द बेस देयर इज द गुवाहाटी सिटी. आप वहाँ पे कीजिए ना, कितना कुछ कर सकते हो. यू कैन डू. या एग्जैक्टली. So that is where our first anxiety came in with respect to that. And little deviation from your question, तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने ये हमारे argument माना. The judge agreed that and he put down in the order, one of the orders, कि the streams cannot be damaged. Okay. So this is now an official order from the Guwahati High Court that mentions that the perennial streams of Kamakhya are sacrosanct. So it cannot be changed or damaged. तो जब ये मैटर हुआ, देन द गवर्नमेंट सेड दैट यू नो कि हम लोग फिर आईआईटी से कंसल्ट करके इस चीज़ को आगे उसका मैपिंग होगा इत्यादि ये होगा. तो यहाँ पे भी एंड इट्स आई फील इट्स काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक तो हमारा ये ऐसा नहीं था कि एडवर्सरियल था ये चीज़. तो यहाँ पे द गवर्नमेंट, द लॉयर्स एंड ऑल दे मेंशन कि नहीं हमारा तो पहले से ही ऐसा कोई प्लान बना के रखा, हम लोग ऑल वी आर ऑल सेट. बट अगर प्लान है तो कहीं पे तो दिखा नहीं है. नोवेयर इट वाज मेंशन कि आप ये करने वाले हो. आईआईटी का नाम भी नहीं था, अब आईआईटी आ रहा है सडनली इनटू द पिक्चर, बिकॉज व्हेन वी आस्क्ड दैट कि ये स्ट्रीम का आप क्या करने वाले हो, बिफोर दैट यू हैड नो क्लू. देयर इज अ वर्क ऑर्डर टू एलएनटी विदाउट मेंशन एनीवेयर ऑफ द स्ट्रीम्स. वो तो मतलब ये मतलब मेन चीज़ ही नहीं है आपका. हाँ, देन let me just complete this chain of thought so that I don't forget. So why we, so and the question later came in that so is that satisfactory for us? क्योंकि अभी तक तो IIT आ ही गया है ना, हमारा तो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है. That was my next question. Yes, IIT आ गया. That's a logical question. Correct. Problem ये है that we right from the time when we entered this year, we found a certain degree of lack of honesty in the approach that the government has taken. It is not that the government is against ये सब, कहीं ना कहीं to push through things without taking development करना है कि infrastructure project की तरह आप देख रहे हो. You are not looking it at as a spiritual thing. तो क्या हुआ है फिर eventually what the last state अभी जो it's the matter is in the courts, but और दूसरा PIL में जो last argument हुआ उसमें so गवर्नमेंट पुट एफिडेविट ऑन द कोर्ट कि हम लोग ये करेंगे आईआईटी से. आईआईटी के साथ एक एमओयू हुआ, देखा गया कि दोनों में देयर इज अ डिफरेंस. ओके, व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग इन द एफिडेविट एंड व्हाट द एमओयू हैज डन. सो दे हैव गिवन इट टू आईआईटी to do the vetting, IIT Guwahati. IIT Guwahati is given it to PWD, PWD has given it to LNT again to do the vetting. LNT has given it to some third party to... But what is IIT's role? How can they just pass off their responsibility? So all these questions come up. The case is still in the court. So that is where, see, as a layman, आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे पहला आता है. If L&T is a party to the project, how will they do it? And do we know from any conversations with IIT Guwahati who owns this? There must be some department of geology, hydrology. Must be. So all this, the lawyers are trying to find out and putting in the court. But यहाँ पे दो. But of course they will not give any answers to laymen. Who is the person responsible कि डेटा देके कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं, या इसको चेंज होना चाहिए? Who is the responsible guy? एक ये क्वेश्चन आता है और दूसरा एक नेचुरल क्वेश्चन आता है. And I'm talking from a layman's perspective. L&T is supposed to get the contract. ठीक है, L&T is doing this, ये जो सर्वे फाइनली it is coming to L&T, is getting it done through a third party. तो कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट तो दिख रहा है यहाँ पे. मेरा कंपनी अगर है, मुझे अगर प्रोजेक्ट मिल सकता है तो आई विल बी मोर कीन कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट ही आए. बोले नहीं कुछ नहीं होने वाला है भाई, वो तो ये बोलेंगे और बाद में कुछ हो गया तो आके सॉरी बोल देंगे, कुछ पेनल्टी हो जाएगा. एक एग्जांपल अपने दर्शकों के लिए देता हूँ. मैं दिल्ली में वसंत कुंज में रहता हूँ, तो वहाँ पर ना फॉरेस्ट एरियाज़ हैं विच आर डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट एरियाज़. तो बिल्कुल उसके एज पे दो बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, शायद आप भी कभी गए हो, प्रोमिनाड और साथ में एक और जो भी उसका नाम है. मैसिव मॉल्स कॉम्प्लेक्स एंड बड़े बड़े ऑफिसेज है भारतीय एयरटेल के और ONGC के. ह्यूज डेवलपमेंट. ऑल दिस इज ग्रीन एरिया. द मॉल्स एक्चुअली केम अप इलीगली.
ठीक है, बाद में जब बन गया सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के में जो केसेस चल रहे थे उन्होंने कहा कि आज तो सब बन गया, वी कांट डिसमेंटल इट, प्लीज उनको कुछ सम टोकन अपॉलॉजी और समथिंग वाज डन एंड वाज ऑल सैंक्टिफाइड। ऐसा ही हो सकता है, कब सब खत्म करके कुछ भी हो सकता है, इसको सॉरी बोल देंगे और कहेंगे ये रहा तुम्हारा छोटा सा पेन। So there is somewhere or the other the one sense that comes in is that कि ये it's looked at as an infrastructure project, और दूसरा है कि कैसे भी करके एक कुछ तो बना दो, there is no emotional connect to that thing। ये एक डिवोटी जो फील करता है एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू विल फील एन इमोशनल कनेक्ट। आप कहीं पे भी जाएंगे, वैष्णव होंगे या जो भी हो जहाँ पे, तो यू विल बी मोर केयरफुल कि मैं ऐसा कुछ ना कर दूं कि कल जाके एक कंपनी का क्या है कुछ बना दिया फिर वो हाँ जैसे आपने बोला सॉरी सॉरी से थोड़ी ना काम बनेगा। वो तो यू आर टेम्परिंग विद अ प्लेस दैट इज 2000 ईयर्स ओल्ड। और तंत्र शास्त्र में कामाख्या के ऊपर कोई पीठा है ही नहीं, मान लीजिए एक तरह से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द शक्तिपीठस। कामाख्या का वर्णन बाकी सारे तंत्र में दिया गया है कि अलग ही चीज़ है कि कामाख्या का वो जो जल है माँ का, वो जल स्पर्श करने से आपका पुनर्जन्म भी नहीं होगा, इतना पावरफुल दैट प्लेस इज देयर एंड देयर आर इन्यूमरेबल स्पिरिचुअल स्टोरीज रिलेटेड टू इट। समवेयर देयर इज अ वेरी लैकेडाइसिकल एटीट्यूड कि एक कुछ कंस्ट्रक्शन बना देंगे और फिर 2-3 फोटो वोटो खींच के हाँ हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आई थिंक द होल अंडरस्टैंडिंग राजर्षि जी इज दैट अच्छा टेम्पल है वहाँ पर, टेम्पल बेसिकली आई थिंक द माइंडसेट इज टेम्पल है जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, उसके आसपास हम सब सुंदर कर देंगे। हाँ, ठीक है, सो दैट इज व्हाट द केस इज सॉर्ट ऑफ अबाउट। ठीक है, एक चीज़ मुझे बताइए, एंड क्वेश्चन दैट कम्स टू मी, जो आपने बताया कि जो टेम्पल है वहाँ पर दैट इज़ 500-600 ईयर्स ओल्ड, किसी ने तो बनाया होगा, बिकॉज द नेचुरल केव एंड द वाटर इज द स्थल ऑफ शक्ति ऑफ कामाख्या देवी, बट एवरीथिंग एल्स वाज कंस्ट्रक्टेड, ऑल द मूर्तिज विग्रहs द टेम्पल इटसेल्फ। तो जब वो टेम्पल बना होगा क्या यही कंसर्न्स तब भी नहीं आए होंगे? सो स्टोरी ऐसा बोला जाता है कि जो 500-600 साल अभी जो कंस्ट्रक्शन है, अबाउट 500-600 ईयर्स अगो, so there was a famous king who had lost his kingdom and फिर वो कहीं जो भी है परेशान थे, वो कुछ बिहार किंगडम वॉज कामरूप कुछ बिहार, मतलब अभी का स्टेट डिवीजन तो वैसे नहीं था, बंगाल एंड असम वेर इंटरकनेक्टेड। तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो ही हैड कम देयर एंड ही लॉस्ट हिज किंगडम। ही वेंट देयर, एक कोई पहाड़ मिला और वो भी इट वॉज डेजर्ट एट दैट टाइम, वो पहाड़ के ऊपर ही टुक रिफ्यूज एंड ऑल दैट। सी मीट्स एन ओल्ड वुमन सिटिंग डाउन, और वो जो लेडी वहाँ पे थी उनको शी जस्ट टेल्स हिम कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम चल रहा है दिस यू विल गेट बैक योर किंगडम, एक तुम्हें एक बलि देना है। ठीक है, तो कामाख्या में शक्तिपीठ में बलि का प्रथा चलता है, बलि प्रथा। तो एक देयर इज अ गोट सैक्रिफाइस यू हैव टू गिव टू द डेटी, और उसके बाद तो उन्होंने वो किया और 6 महीने में 6-7 मंथ्स ही गेट्स बैक हिज किंगडम दे से। एंड एक बार फिर से जब वो राजा बन जाते हैं, जो सब कुछ वापस आ जाता है, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या था। सो ही गोज विथ हिज जनरल ढूंढते ढूंढते उस जगह पे एंड ही सीज दैट देयर इज अ फॉरेस्ट एंड ऑल दैट। तो उसके बाद वो ही इन्वाइट्स ऑल पंडित इन नॉर्थ इंडिया, बंगाल, काशी, सब जगह से कि ये क्या है, what is this hill, what is this place, and they consult the shastras and all that and they start digging little bit of that area। तो ये हिल जैसा है, हिलॉक है। एक्चुअली देयर 3 हिल्स इन कामाख्या, 3, उसमें सेंट्रल हिल जो है वो नील पर्वत देवी का वहाँ पे है, फिर एक वराहा हिल है और दूसरा एक तीसरा हिल है। तो दे स्टार्ट डिगिंग एंड दे सी दैट जगह जो है एक प्लेटो जैसे होके अंडरग्राउंड जा रहा है, अंदर अंडरग्राउंड जाते जाते देयर इज अ गुफा, नेचुरल गुफा एंड ऑल दैट। And the people unanimously say that this is the famous Kamakhya Kshetra which was lost for some period of time। कुछ समय के लिए लोगों को पता नहीं था कि कामाख्या exactly कहाँ पे है, some which may be 100 years or something like that। And then he reconstructs the whole outside of the temple, ensuring that the cave remains as it is। तो कहीं एक तो उस समय पे we can sort of understand that this is in those eras when making a temple the king himself was a devotee, so there is no chance that he would be cause something कि वो जो गुफा का जो मेन स्रोत है वो उसको कुछ गड़बड़ हो जाए या ये हो जाए। that was not the case। एक नंबर 2 is that population was much lesser at that time, वो सब भी फैक्टर था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन mechanisms perhaps Very not different. perhaps Very but different. surely are very जी, very जी, different। जी। You know, you don't endlessly dig deep and concretization and वो सब तो In fact, कहानी कुछ होता ही नहीं एक there was some paper I was reading, तो actual गर्भगृह जो है माँ कामाख्या का, वहाँ पे कुछ there are some stones inside the गर्भ natural formation which is at least 2500 years old। So that is so people who have done some research on this, there are papers online also, so they believe that it's been 2500 years old, it's a continuously worshipped place।
बीच में देयर इज अ स्टोन्स का रेफरेंस आप बोल रहे हो कि कंटिन्यूअस वर्शिप से स्टोन्स वुड मस्ट बी मिलियंस ऑफ इयर्स maybe so they somehow the other that was I don't remember the exact technical terminology तो करीब एटलीस्ट 2-2,500 साल तो डेफिनेटली था. इनफैक्ट कामाख्या इज द ओनली शक्तिपीठ दैट इज मेंशन्ड इन महाभारत. महाभारत में ये माना जाता है कि नरकासुर जो थे ही वॉज ए किंग ऑफ कामाख्या. तो वो वराह अवतार के पुत्र हुआ करते थे. वराह अवतार टॉट हिम हाउ टू वर्शिप कामाख्या देवी एंड टोल्ड हिम कि 2 कंडीशन है, तुम यहाँ पे ही राज करोगे, यू नो वन विल बी एबल टू रिमूव यू. ओनली 2 कंडीशन इज दैट यू शुड वर्शिप नोबडी अदर देन कामाख्या. एक नंबर 1. नंबर 2 इज दैट जो सदाचारी ब्राह्मण्स एट्सेट्रा शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू देम. सो दो ही वॉज born, his father was Varaha avatar, as a in mythology, in spiritual stories it is believed, and the mother was earth, Dharitri. So he reigned for a long time, and then eventually his mind got corrupted with influence of Banasura, who was also from around that area, and he started tormenting the Brahmins. He started worshipping other deities. ऐसे मानते हैं. And then Krishna and Satyabhama came, and Krishna and Satyabhama defeated Narakasura कामाख्या में. तो कामाख्या एक तरह से उतना पुराना है, आप सोचिए. उस डेटिंग के हिसाब से तो 2,500 नहीं, फिर तो 3.5 से अगर नीलेशोक के सुने तो 7,000 साल पुराना. So it is that old. So between that that timeline. तो कामाख्या का अदर देन महाभारत, आपने बताया था हमारी चर्चा में बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन दैट द स्क्रिप्चर्स एंड यू हैव प्रेजेंटेड दैट टू द कोर्ट. सो इज देयर अ लॉट ऑफ इन तांत्रिक लिटरेचर, इज देयर अ लॉट ऑफ. जी जी, एक कामाख्या का रेफरेंस तो एक पहले आता है कि आपके इनफैक्ट कश्मीर के जो बहुत बड़े आचार्य हुआ करते थे, अभिनव गुप्त आचार्य, उन्होंने ही मेंशन्स अबाउट समबडी कॉल्ड मत्स्येंद्रनाथ. नाथ योगी संप्रदाय के जो मेन हुआ करते थे, हाँ, मत्स्येंद्रनाथ. तो मत्स्येंद्रनाथ के बारे में ऐसा माना जाता है. एंड दिस मस्ट बी दिस रेफरेंस कम्स अराउंड, शुड बी अराउंड 5th और 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं उस समय पे. एग्जैक्ट तो यू कैंट पुट द स्क्रिप्चरल डेट, बट मोर और लेस. तो ही मेंशन्स जस्ट वन थिंग दैट मत्स्येंद्रनाथ जैसा कोल इज द काइंड ऑफ तंत्र दैट इज फॉलोड. तो जो वो पद्धति फॉलो करते हैं उसको कोल कहा जाता है. तो कोल तंत्र में इतना कोलाचार्य, इस लेवल का कोलाचार्य कलियुग में ही नहीं मिलेगा. ही मेंशन्स दैट देयर इज नोबडी हु इज ऑफ हिज कैलिबर, एंड बाद में भी कोई उनके कैलिबर के नहीं मिलेगा. तो मत्स्येंद्रनाथ, it is believed in some texts, was born in a place called Chandradeepa, somewhere perhaps in Bangladesh area, and they say that he heard the tantras from, he was swallowed by fish, and that fish went to some mythical island where Shiva and Parvati were sitting, and दोनों के संवाद हो रहे थे तंत्र के बारे में. तो इन्होंने सुन लिया वो फिश के स्टमक में रहते हुए. That is how he learned the tantras. Okay, and afterwards later he came to Kamrup Pitha, Kamakhya, and he settled there. He composed few seminal texts. इसमें से एक था कोलो ज्ञान निर्णय इत्यादि, बहुत सारे, the other I forget. Anyway, so he came at a time when योगिनी तंत्र जिसको कहते हैं, योगिनियों का पूजा एक चीज़ होता है जो तंत्र शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंस है. और नाथ संप्रदाय का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट वाज ऑल फ्रॉम मत्स्येंद्रनाथ. तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि स्कॉलर्स से दैट ये जो कोलो ज्ञान निर्णय जो टेक्स्ट उन्होंने कंपोज किया, वहाँ पे देर आर इन द संस्कृत दैट इज़ यूज्ड, इट इज़ स्लाइटली डिविएटिंग फ्रॉम द क्लासिकल मैनर इन विच टेक्स्ट आर रिटन. क्लासिकल संस्कृत का एक होता है कि जो राइटिंग रिटन अभी भी आप एक बुक पब्लिश करेंगे तो इट हैज़ टू बी फ्लॉलेस, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. लेकिन ये कोलो ज्ञान निर्णय में देर आर सर्टन श्लोकास वेयर देर इज सम संस्कृत के जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ राइटिंग है उसमें से थोड़ा डिविएशन है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नाथ संप्रदाय का सबसे वन ऑफ द मोस्ट की एस्पेक्ट्स इज दैट साबर तंत्र कहते हैं उनको. तंत्र का एक फील्ड है विच इज़ बेसिकली कि नॉन संस्कृत मंत्रस, ये हिंदी में हो सकता है, बंगाली में हो सकता है, भोजपुरी में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, नॉन संस्कृत. तो दीज मंत्रस ऑफ ऑल डेटीज वेर गिवन टू पीपल कि एक व्हेन द मिडिएवल पीरियड्स आते हैं लोगों को संस्कृत आता नहीं है तो कैसे करेंगे. एग्जैक्टली. तो ये दिस चेंज इन द लैंग्वेज एंड द फैक्ट दैट द नाथ योगीज इज टू प्रमोट द साबर तंत्रस, कहीं ना कहीं स्कॉलर्स थिंक दैट दिस इज एन एविडेंस ऑफ इट कि वो उनके जो दो द पुस्तक, दो द टेक्स्ट दैट ही रोट, कोलो ज्ञान निर्णय इज अ वेरी पावरफुल योगिक तांत्रिक टेक्स्ट. तो उसमें सब कुछ है, कुंडलिनी वगैरह सब कैसे हो इत्यादि सब डिटेल्स है. बट द ट्रांजिशन इज ऑलरेडी कमिंग इन एट दैट टाइम कि चलो इतना लैंग्वेज का स्ट्रिक्टनेस हम लोग को नहीं चाहिए, थोड़ा सा अगर रिलैक्स भी कर देते. इंपॉर्टेंट इज दैट ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस करना चाहिए, साधना को प्रैक्टिस करना चाहिए. तो ये होते हैं. तो मत्स्येंद्रनाथ वाज, और इट कुड इवन बी बिफोर
the proper structure to Sanskrit, if you like. I mean, नहीं उतना नहीं होगा क्योंकि टेक्सचुअल, क्योंकि ये होगा, हाँ दिस इज लेटर, क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी कश्मीर साइड एंड ऑल दैट देयर आर फैंटास्टिक टेक्स्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल. हाँ, सो दिस शुड बी आई बिलीव अराउंड शायद 6th-7th सेंचुरी के आसपास होगा, या उससे नॉट लेटर देन दैट. एट अ टाइम व्हेन स्कंद, जो कार्तिकेय अभी साउथ में हम लोग मानते हैं ना, उनका पूजा तो पूरा एक समय अफगानिस्तान से बंगाल सब जगह होता था. सो एट अ टाइम व्हेन नॉर्थ में स्कंद उपासना वाज वेरी पॉपुलर. मैंने ये सुना है कि पंजाब में स्कंद, पंजाब वो स्कंद, जो खंड है वो भी स्कंद से आता है. सो दैट मत्स्येंद्रनाथ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट येस. तो वहाँ पे कामाख्या का मेंशन आता है. तो ये एस्टैब्लिश्ड है, एंड हैज द कोर्ट एक्सेप्टेड दैट दिस इज, आई मीन द स्क्रिप्चर, this is very ancient and must be protected. इसमें तो एटलीस्ट देयर वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आल्सो इसका दे आर नॉट चैलेंजिंग दिस. ये तो एक्सेप्टेड है, एंड नॉट जस्ट मत्स्येंद्रनाथ, ये तो मैं पहले मैंने 5th सेंचुरी का बोल रहा हूँ. लेटर ऑन योगिनी तंत्र, कालिका पुराण. But there is reference to the gufa and the water sources as the what needs to be preserved. In fact, not just the gufa and the water source, specifically the Kalika Puran mentions that the hill is Sadashiva. The hill is Sadashiva. So the hill itself is a living deity for us. कामाख्या क्षेत्र में जब भी पूजा होता है माँ कामाख्या के या कोई भी महाविद्या का, तो वो मिनिमम टू मिनिमम द पुरोहित, द पांडा विल मेंशन कि ये नील पर्वत में सिचुएटेड. नील पर्वत इज द बॉडी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिवात्मका नील पर्वत नील शैले, ऐसे करके मेंशन करेगा ही करेगा. बिना उसके कोई संकल्प होता ही नहीं है. तो पहाड़ तो नाम वहीं पे आता है कि इट इज़ द ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीनों इसमें है. सो मगर केवल वो बोलने का मेंशन है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि, और ये हर जगह दिखता है भारत में, जो डेसिक्रेशन बाय हिंदूज देमसेल्व्स इज़ वेरी हाई इन ऑल आवर सेक्रेड प्लेसेस. सो हम जैसे बात कर रहे थे, पांडाज हैव अ लॉट ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन दैट एरिया आल्सो. सो माय व्यू इज दैट यस देयर हैज़ बीन कंस्ट्रक्शन बाय देम आल्सो. इसमें ऑन द हिल क्योंकि एक इसमें 2 पॉइंट है टू एज अ लेमैन आई विल मेंशन. एक है कि सो पांडास विल स्टे ऑन द हिल बिकॉज दे हैव टू डू सेव ऑफ द डेटी, एक ये है. पर उसमें भी देयर इज अ सर्टेन जजमेंट दैट शुड बी देयर कि कितना तक आप बना सकते हो, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, सो दैट दिस द वाटर स्ट्रीम डज नॉट गेट अफेक्टेड इन एनी वे. तो हमारा पिटिशन ऑलरेडी मेंशंस एंड वी डिड सम सर्वेज थ्रू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कि ऑलरेडी वाटर स्ट्रीम में इफेक्ट आ चुका है इवन बिफोर गवर्नमेंट का जो ये मैंने कॉरिडोर बनने के पहले ही. सो आवर केस इज़ नॉट दैट वी आर जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस क्षेत्र. तो ये दूसरा चीज़ है कि अगर कोई पूछता है, दिस वाज आस्क्ड इन द कोर्ट बाय द एडवोकेट जनरल कि आप लोग फिर जब वो बन रहा था तब आपने क्यों नहीं आया. तो एक है कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, 2 गलती से एक सही नहीं हो जाता है. दूसरा है कि आप गवर्नमेंट हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है, और द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट यू आर प्लानिंग टू डू इट इज़ मच हेवियर देन व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट. इनफैक्ट अगर वो इलीगल है तो रिमूव इट एंड रिस्टोर इट टू अ बेटर प्लेस, हाउ इट इज मेंट टू बी. एग्जैक्टली, उसमें तो मेरा कोई दिस इज नथिंग, आई एम जस्ट अ डिवोटी, दैट्स ऑल. इसमें ऐसा नहीं कि वो केस ये हारना जीतना भी कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट दैट आई एम गोइंग टू गेट समथिंग इफ आई विन. या और ऐसे लांछन आप पे लग रहे होंगे कि यू हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस, वही पूछा भी गया था, एंटी मोदी हो गए, ये सब नॉर्मल कोर्स में ये सब एलिगेशन आता रहता है. हाँ, या जो भी काशी के खिलाफ बोलेगा, जैसे मैं तो नहीं बोल रहा था, मैं तो ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ, तो मैं प्रो मोदी होऊंगा शायद. प्रो मोदी. राजर्षि जी, इससे पहले जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपने ये योर मोटिवेशन टू डू दिस वाज अ देव प्रश्नम दैट यू डिड इन द एरिया. कैन यू टॉक अबाउट दैट? या सो व्हेन इनिशियली दिस was coming up, then I had the ये कि एक idea उस समय पे I did not know कि क्या करना चाहिए. It was still at a very initial तब stage. आपने सुना था या ये मॉडल देखा था, and then you wanted to ensure कि वो काशी जैसा yes, बवाल ना खड़ा. ऊपर का आइडिया था, कुछ डिटेल्स नहीं था उस समय पे. There was no कि मैं I didn't had no idea that कि केस तक ये मैटर जाएगा. So just as a devotee at that time, but I wanted to get some clarity कि क्या करना चाहिए. So we got a Deva Prashna done, and there were 2 very competent individuals who came from Kerala to Kamakhya, and for 2 whole days the Prashna was done. Okay? And I have a recording of the Prashna also fully, so that there is no, and they gave a list of various very remarkable predictions as the Prashna went on, and I would say that was one of the most terrific experiences in my own life, because I have never seen a Deva Prashna live in front. सामने से नहीं देखा था कभी. तो
or those people were one of the most gifted individuals. So they started, once they start, why I'll say that is, at the end of the day it's a process of ज्योतिषा. तो ज्योतिष, और मान लीजिए कोई डॉक्टर भी हो, उसका शंख के साथ ऐसे सब कुछ, there was gold, there was 8 different things. In fact, once I went into the room, पहला चीज़ पूछा गया कि just touch, कुछ भी चीज़ आप टच करो, तो draw something etc. उस हिसाब से फिर interpretations. Not just this, in fact, जब उनको इनवाइट करने गया था, अच्छा आने से पहले उनको जाके घर में इनवाइट करना होता है विथ तांबूलम एंड ऑल दैट. यू बाई पान, जैसे कहते हैं ना, पान तांबूलम लेके आप जाएंगे. मैं खुद जा नहीं पाया. सो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आई सेंट वन ऑफ माई पीपल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड जो साधना करता है उसको भोजा साउथ का है, कि तू चले जा, उनको इनवाइट करके आना है. द डे ही रीच्ड देयर, जिस दिन, जिस समय, जिस मुहूर्त में जहाँ पे उनसे मुलाकात हुआ, वो रूम में घुसे तो रूम के जो ड्राइंग रूम थे, द ज्योतिषी, द पर्सन हु विल बी डूइंग द रीडिंग, ही वाज नॉट देयर, ही वाज इन द इंटीरियर रूम. ठीक है, तो वो डायरेक्टली इंटीरियर रूम में चले गए. तो इंटीरियर रूम में वो बैठे हुए थे, उनके साथ और भी रिलेटिव्स एंड ऑल दैट से. उस दिन, उस मुहूर्त, उस समय जो व्यक्ति गया था, उसका नाम, पहला शब्द उसने जो बताया, ये सब, एवरीथिंग वाज टेकन इनटू अकाउंट इन दिस रीडिंग, एवरीथिंग. ओके, एंड इट वाज a just two things. It was a remarkable reading and it was scary reading. I will not go to the full details of it, but only thing is that bottom line of it, 3 things are there. One is that जो मैं बता रहा था कि at the end ज्योतिष और say for medical science और ज्योतिष, इसमें competence is judged by one thing, कि आपका accuracy हुआ है कि नहीं. आप 10 पुस्तक रट लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका रीडिंग एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं. दिस जेंटलमैन, उन्होंने जो बोल के 2 दिन तक कंटिन्यूसली चला, 2 days 48 hours, एवरी बिट ऑफ इट हैज़ कम ट्रू. उन्होंने जैसे बताया कि एक, टू गिव 1-2 एग्जाम्पल्स, नॉट टू मच. सो देयर वर 4-5 people in the room at that time. He said that some of these people will back out. Okay. Of the petitioners will back out. उस समय तो पिटिशन बना ही नहीं था, उसको कोर्ट केस का सवाल ही नहीं था. I was just sitting down. People who are coming forward right now to defend will back out. Yes, and then some of them will also may join the opposite side. सब हुआ है, A to Z. I have a full recording of it for 2 days. फिर such and such date, such and such lawyer will back out. हुआ है. He told कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट will say no, you have to come to Guwahati High Court. हुआ है. He told there is a lady, हाँ ये तो सबसे रिमार्केबल चीज़ है. हम रूम में बैठे थे and he is saying that there is a lady with certain such, कुछ डिस्क्रिप्शन उनका दिया और कुछ उनका कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे ऐसे बोला. वो लेडी सामने आने वाले हैं. You have to bring that lady in front. She will be helping you, और ये माँ का इच्छा ऐसे ऐसे. After that, our first petitioner, Gitika Bhattacharya, she is a local from there. She belongs to a family that has links to Kamakhya. कामाख्या क्षेत्र से उनके जो मेन गुरुज है कामाख्या के, कहीं ना वही फैमिली से है. शी केम फॉरवर्ड. सो दीज वेर रिमार्केबल. उनको पता कैसे चला था? उनको खबर आया था कहीं ना कि ये सब चल रहा है. सो शी वांटेड टू मीट. एट दैट आई हैड मेट हर वंस बिफोर दैट, बिकॉज मेनी पीपल मीट मी, बट उस समय तक आई वॉज नॉट वेरी, मेरे दिमाग में नहीं था कि केस करना है. Even the case was not there in the head. But then he goes back and then he says कि लेकिन it is the will of Ma Kamakhya that you have to go ahead with this. Doesn't matter कितना opinion. So the Ma wants this case to proceed. Yes, it is the will of Ma Kamakhya that you have to organize this case. जो भी है, जो भी करना है, जिसको साथ में लेना है, जो करना है. तो एक तरह से वो रीडिंग वाज वेरी गुड, बिकॉज आई हैव द रीडिंग एंड वॉट एवर जो इन्होंने बोला है सब हुआ है, वैसे ही तरीके से हुआ. एंड ही मेंशन देयर 2 of them. ही मेंशन वेरी क्लियरली कि केस करना है और ये माँ कामाख्या का विल है. सो आई टुक दैट एज अ कि अभी तो करना है, जो भी हो जाए. And then I got together 13-14 people, and then we found a lawyer. Then we only collected funds for the lawyer and जो भी है etc. Initially we were having a bit of difficulty in getting lawyers because this case is, mind you, ये जो case है ना, ये आपका बाकी तरह के नहीं है. ये this is like directly anti government हो जाता है एक तरह से, right? So that is why obviously that has its own pros and cons. Anyway, so lawyers may not want to associate, and also many lawyers don't want to associate with Hindu cases because they get tagged as activists very often. So वो avoid करते हैं. But another point needs to mention, ये जो प्रश्न हुआ था, ये तो मैंने खुद साथ में सामने खड़ा था, मैं I was sitting there with them.
Similarly, two other prashnas were conducted by people associated with me just to get clarity. ठीक है, एक हुआ था साउथ में किया गया था, दोनों ही साउथ में किया गया था अलग अलग जगह पे विद सेपरेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि प्रश्न का ये है कि एक ही इंडिविजुअल बार बार नहीं कर सकता है एक मंदिर के ये से, मतलब जैसे जिन्होंने ये मंदिर का किया है शायद अगले 10 साल तक उनको कामाख्या के बारे में पूछ नहीं सकते, कोई और दूसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। और ये इट्स अ थिंग दैट पासेस इन द ट्रेडिशन। ये देव प्रश्न जो है वो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता। फॉर द ऑडियंस देव प्रश्न कंतारा जैसा है ना, सो स्लाइटली डिफरेंट। कांतारा वहाँ पे क्या होता है कि देयर इज काइंड ऑफ एन आवेशम ऑफ द डे। यहाँ पे बेसिकली इट्स अ प्रश्न, बट मेन आइडिया इज दैट दो चीज़ें, अच्छा अष्टमंगल प्रश्न 8 डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी केप्ट, और उसके अरेंजमेंट और उसके हिसाब से नवग्रह का एक मंडल बनाया जाएगा, उसका पूजा होगा, फिर वो जो 8 वस्तु रखा गया है उसके निमित्त रीड करते हुए आपका पूरा रीडिंग है। निमित्त में जैसे कि आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, जो जिसको मैंने भेजा था उनको बुलाने के लिए, उनके घर गए हुए थे वहाँ पे, तो एक तांबुल लेके गए थे वो, ये तो तांबुल का कितने सारे तांबुल का, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर एटसेट्रा। सो दैट गाय, हिज नेम, हिज निकनेम रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर डेटी। अच्छा, जिस दिन वो पहुँचे थे उनके घर में वो था संडे एंड द तिथि वॉज षष्ठी एट अ पर्टिकुलर होड़ा टाइम। जो तांबुल वो लेके गए थे उसका एक स्पेसिफिक काउंट वो हिसाब करते हैं कि इतना सारा, चाहे 10 अगर लेके गए हैं तांबुल, उसमें से कितना अच्छा निकला और कितना जो खराब है वो हटा के। एंड ही सेड राइट एट द बिगिनिंग कि आप जो साधना आप कर रहे हो सब ठीक है, उसके साथ यू हैव टू स्टार्ट वर्शिपिंग कार्तिकेय। अंटिल यू वर्शिप कार्तिकेय ये चीज़ मैटर आगे नहीं जाएगा। एंड दैट कॉज अ रिमार्केबल चेंज। In fact, there have been places when I have had the weird, strangest experiences. People with some or the other association of Kartikeya have come forward to help in this matter. ठीक है, तो इतना एक्यूरेसी में वो लोग जाते हैं। सो 3 रीडिंग्स वर डन, ऑल तीनों में इंडिपेंडेंटली यही बोला गया था कि केस हैज़ टू बी फाइल्ड। ये हार जीत का मैटर नहीं है, शी वॉन्ट्स दैट द केस बी फाइल्ड। वॉट फाइनली शी वॉन्ट्स, शी ओनली नोज, द डेटी नोज, बट इतना तो तय था कि केस हैज़ टू बी पुट इन, बिकॉज अदरवाइज एज वी आर सीइंग राइट नाउ, अगर ये केस नहीं होता तो अब तक तो कंस्ट्रक्शन वाला चालू कर देते। Thank you for doing the case. So, it is her will. Her will and you are the people are nimitta. the only nimitta, बस यही। ठीक, so you know I have this habit of writing all the questions and points on the table. I guess I've pretty much covered a lot of things. So just to sort of summarize, and this point may be important to reiterate, you're saying I am not anti-government. Right. I am not anti-development. Right. Of course, anti-government also means I'm not anti-Modi. I have nothing to do I'm with probably pro-Modi. but, yeah. I don't, but and this is a representation you've told the judges as well, that you're not against development. Right. You're not against Correct. jobs being created. Don't surround आप me with- मेरी जगह को desecrate मत करिए. Right. And the importance is the preservation of the गुहा and the flow of natural flow of water. वो टच नहीं करेंगे. In fact, जो डैमेज कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन से शायद हुआ है उसे अगर और रेक्टिफाई करके अगर रेस्टोर कर सकते हैं, डू दैट, एंड वॉट एवर डेवलपमेंट यू वांट टू डू इट एट द बेस ऑफ द नीलांचल हिल, वहाँ पर आप करिए और जितनी जॉब जनरेट करनी है करिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आएगा मेरा, बिकॉज आपने अपने नोट में लिखा था कि एक लिमिटेड सेट ऑफ लोग जाकर स्पर्श कर सकते हैं। एक्चुअली एक और क्वेश्चन है, एंड बिफोर आई गो देयर लिमिटेड सेट लिख लेता हूँ, उस पर वापस आते हैं। नॉर्थ में वैष्णो देवी में पहले गुफा होती थी, एंड एज अ किड मैं कई बारी गया हूँ, 3-4 बारी, तो मैं वो गुफा में से एकदम संकरी सी पत्थरों के बीच में लेट के जाना होता था। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू गो टू वहाँ वैष्णो देवी, एंड वहाँ जाके, वहाँ तो खैर जल्दी से भागना पड़ता है, you can't do any puja there or anything like that, but that whole experience was very nice. That gufa has been closed. In fact, now that gufa does not have water at all. So just maybe a side question, do you think that जो जिस तरह का स्वयंभू organization यहाँ पर है, if you like, that माँ is there as the source of water, do you think that could have been the case in Vaishno Devi as well? Do you know about it or? I don't know. I have not been there myself. वैष्णो देवी अभी तक गया नहीं हूँ मैं, बट हो सकता है, क्यों नहीं। और इसीलिए taking this much beyond just the limited matter of the court case, I feel that there is a very strong
ये टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे वेदर इट्स द हिंदू लीडर्स और जो भी है, जो जिनके बात लोग मानेंगे, या गवर्नमेंट तो ऐसे किसी का नहीं होता जहाँ से whoever give you the vote, government will go there. I can't pin the blame on the government at the end. समवेयर द पीपल हैव टू बी एडुकेटेड कि आप जब मंदिर में जा रहे हो, कहीं पे भी इतना पावरफुल कोई मंदिर में जा रहे हो, व्हाट आचारम आर यू फॉलोइंग, व्हाट प्रोटोकॉल आर यू फॉलोइंग. यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि आई एम गोइंग टू मीट समबडी वेरी पावरफुल. आज मुझे कोई CM PM या कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन अगर बुलाता है कि चलो कम एंड मीट, आई विल बी एटलीस्ट कॉन्शियस कि मैं क्या ड्रेस पहन के जा रहा हूँ, मेरा जूता ठीक है कि नहीं, समय पे पहुँच रहा हूँ कि नहीं, एक्सेट्रा. दैट सीरियसनेस इज नेचुरल टू एनी डिस्कोर्स. एक बच्चे को अगर स्कूल का प्रिंसिपल बुलाते है उसमें भी 10 बार सोचता है कि मेरा सब ठीक ठाक है कि नहीं. वो नाउ यू आर गोइंग टू द हाउस ऑफ ए देवता, तो आपका वो what is your attitude, what is your behavior, what is your protocol of engagement, what is your dress, ये सब चीज़ it's very important to understand. So, follow-up question on the same thing. There is a possibility from what I've heard that Vaishno Devi as a spiritual or a Shakti sthal, I don't know if it is a Jyotirlinga, I understand it is Swayambhu as well. I'm not sure if it is a Shakti Peeth. I don't think it is. Based on what you're saying, I get a feeling that has already been desecrated. But still, millions and millions of people go there to see a pindi basically. हम हिंदुओं का association has become to a pindi, that is the devata. But what you're saying is that the devata doesn't have to be a pindi or a vigraha, which is also pran pratishtha say made by humans, but it could be simply a water source. Yes. It could simply be a gufa. Yes. And so Hindus have to understand this. Absolutely. In fact, specifically शाक्त धर्म में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. शक्ति पूजा में, शाक्त धर्म में तंत्र उपासना के पद्धति से जब किया जाता है, और माँ का पूजा का सबसे प्राइमरी मेथड इज तंत्र उपासना. लेट बी वेरी क्लियर. बाकी पौराणिक मेथड इत्यादि सेकेंडरी मेथड, ठीक है, दैट इज इफेक्टिव, बट प्राइमरीली शी लव्स. ये तंत्र का जो मार्ग है, शक्ति तंत्र का, वही उन्हीं से ही आया है. ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया. शंकर भगवान ने ये जब मार्ग उन्होंने बताया लोगों को, ये बोला है, ही सेज कली युग में देवी का उपासना जो है ये इसी मार्ग सबसे बेस्ट होता है. शी लव्स दिस पाथ. सो उसका इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडुकेट पीपल कि क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए. इट कुड बी एनी वेयर. जैसे मैंने बता रहा था कि एक ऐसे देयर इज़ अ कोंकालीतोला शक्तिपीठ थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन आई हैव, वी रजिस्टर्ड वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कामाख्या भैरव उपासक फाउंडेशन. तो ये केस आप उसी से लड़ रहे हैं? नहीं, दिस इज इंडिविजुअल्स वेयर, but all of these individuals are somehow connected to Kamakhya Bhairav Upasak Foundation. Not as official capacity, unofficially also. Fair enough. And the fundraising that you're doing is through this organization? For the case, we have all put in our own money. We haven't taken anything from anybody. If needed, we will have to appeal to people. अगर केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तब. Is that something we can put on record for people to? Yeah, maybe. Why not? Why not? Okay, then we'll put it in the the details as we talk of the donation, and also in the link in the video below. So request to all the people listening, please donate to the organization so that this case can move forward without hindrance of money, at least that much. Thank you so much. And we also plan to make eventually, it's a long term goal, 8 Bhairav temples across India, which we feel from that the same organization. Yes. You want to lead this. Wonderful. Wow. And you believe because I had during this, so this whole case, I look at it as a transformative journey. ये सिर्फ केस नहीं है मेरे लिए. My own sadhana changed in this 1 year. There is, एक तो केस होता है, दूसरा चीज़ होता है कि उसके पीछे there are many sadhanas that we do. ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारे जो ग्रुप में जो लोग हैं, they do specific उपासना, they're all उपासक्स अपने तरीके से. माँ कामाख्या को मानते हैं, भैरव बाबा को मानते हैं, बाकी जो जिनका पूजा करना इत्यादि. Every month we raise money from our group only, and we do सेवाज टू वेरियस डेटीज. काशी में महाकाल, काशी के जो काल भैरव है, वटुक भैरव है, काशी विश्वनाथ है, कामाख्या है, तारापीठ है, कोंकालीतोला है, साउथ में दंडयुद्धपानी, पलनी, देन देयर आर फ्यू वैष्णव टेम्पल्स. अच्छा, महाकाल उज्जैन, नेपाल के जो महाकाल है, नेपाल में गुज्जेश्वरी. एवरी मंथ वी डू स्पेसिफिक पूजाज एंड सेवाज. संकल्प एक ही होता है कि टू प्रोटेक्ट सनातन धर्म, और जो सनातन धर्म विरोधी है
इट इज़ नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, किसी के लिए नहीं. एंड दिस गोज़ एवरी मंथ. धर्म का उद्धार हो, अधर्मियों का नाश हो. जी, दैट इज आई फील पर्सनली एज ए उपासक, आई फील दैट ये चीज़ जानना है कि देवता इज नॉट बाउंड टू हेल्प यू. ये आप साधना जितना करेंगे उतना समझ में आएगा, बिकॉज देयर पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट. ये आप हिंदू हो, कल हिंदू चले भी जाए, कोई आ जाए, वो कैसे भी करके वो देवता के साथ लिंक हो जाएगा. दैट इज़ वाई लॉर्ड शिवा एंड भैरव बाबा, जो हुम आई वर्शिप लॉर्ड, आप पुराने पॉलीथिस्टिक कल्चर्स देखेंगे, बहुत सारी जगह पे डेटीज एग्जैक्टली लाइक भैरव अपीयर्ड. ही हैज़ द एबिलिटी, अ डेटी इतने उनमें इतना शक्ति होता है कि वो चाहते हैं तो कोई भी कल्चर में यू कैन मेक एन अपीयरेंस. हाँ, थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा कल्चर के हिसाब से, उसके टर्मिनोलॉजी, उसके राइट रॉन्ग के अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से, बट दे कैन स्टार्ट एंगेजिंग विद एनी कल्चर. दे आर नॉट टाइड टू हिंदुइज्म. उनका कोई ये नहीं है, कोई किसी ने वो लिख के नहीं दिया है कि हमें हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना है. How you engage with him will determine how they want to, whether you help or Because not. we engage with them is why we are called Hindus. Yes, exactly. तो कहीं ना कहीं through our organization we get all these things done also. आपका I forgot the question. हाँ, मतलब ये वाला तो part is addressed. I'll just come to the limited audience. So basically जगमोहन जो कश्मीर के गवर्नर थे was the main person who took the वैष्णो देवी case forward. तो वहाँ पर क्या है, पहले गुफा थी, अभी गुफा साइड में है. इन्होंने गवर्नमेंट ने ब्लास्ट करके एक अननेचुरल गुफा बनाई है, विच इज़ लाइक अ बिग वन, यू कैन वॉक थ्रू इट, और इतनी जगह और बचती है, वेल लिट एंड सो एंड सो फोर्थ. सो इट्स लाइक गोइंग टू अ लाइक अ छतरपुर और एनी बिग टेम्पल, इट्स लाइक गोइंग देयर. एंड सामने पिंडी दिखती है, पंडित बैठे हैं, चलो जी, बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ. बाहर जो एक्सपीरियंस है, श्योर, शेड डाला, बारिश, रेन, स्नो भी आती है वहाँ पर, वो सब कवर करें, बड़ी अच्छी बात है. ये जो कंप्लीट stopping the going off through the war, and because I think construction and deforestation, they must both be reasons that the whole original cave is totally waterless. So ये सुनने के बाद मुझे लगा कि उसकी वो पूरी डेसिक्रेशन हुई हो शायद. दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज़्यादा है, विच इज़ वाई द गवर्नमेंट मस्ट बी थिंकिंग, अच्छा जी हम बहुत कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बड़े सारे लोग आएंगे, अब ये नेचुरल गुफा में एक और रास्ता दे देंगे जो जल्दी जल्दी निकलो जी निकलो. हाँ, तो हाउ डज वन फाइंड बैलेंस? शुड इन योर ओपिनियन दीज, आप टेम्पल आइए, बड़े सारे लोग आइए, नो प्रॉब्लम, बट गुफा के अंदर जो जाएंगे वो केवल कुछ ही लोग जाएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रावधान, ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है? If we put it this way, it sounds discriminatory. इतने लोग आ रहे हैं, 10 जन क्यों जाएंगे, बाकी क्यों नहीं जाएंगे? तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देने से नहीं होगा. आई फील गवर्नमेंट ओनली फंक्शंस एज पर द पीपल्स डिजायर्स और कुछ है. कहीं ना कहीं ओरिजिनल सिस्टम में क्या होना चाहिए था? सो ईच ऑफ द क्षेत्र शुड हैव वन एसोसिएटेड धर्मगुरु, कोलाचार्य, जो एक रिलीजियस हेड है. उनका काम है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यू यूज सोशल मीडिया एक्सेट्रा टू एडुकेट पीपल. ये नहीं है सी द एक इन बांग्ला वी यूज़ अ टर्म कॉल्ड हुजुक, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट हिंदी. वो एक जोश होता है, चलो चलो हम सब जाते हैं, घूमते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, टूरिज्म के लिए थोड़ा इधर घूमने भी जा रहे हैं, एक मंदिर भी दर्शन कर लेते हैं, एक वाला आइडिया है. अंडरस्टैंड मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप साधना पहले कीजिए, ठीक है, और व्हेन यू गो टू द टेम्पल यू गो विद अ सर्टन दैट काइंड ऑफ रेवरेंस एंड एटीट्यूड. ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के सबको 10 बार मंदिर जाना है, ये करना. इट इज़ नॉट. डू यू थिंक, एंड टू गिव अनदर एग्जाम्पल, ये जो आजकल वीडियो आता है, मैंने पहले आता था वो नॉर्थ में कुछ शिवलिंग में जो स्पर्श दर्शन होता है ना, ये यू विल सी इट इज़, आई फील दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट मोलेस्टिंग द शिवलिंग. कि 10 जन मिल के पता नहीं वो उसका वो खाना खा के हाथ धो के भी आया है कि नहीं, कुछ नहीं है, एट्सेट्रा, समथिंग लाइक दैट, यू आर टचिंग द शिवलिंग. आपको क्यों लगता है कि वो शिवलिंग अगर वहाँ पे है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, डोंट यू थिंक लॉर्ड शिवा कैन ब्लेस मी इवन देयर? वो छूना ही होगा. सो दीज थिंग्स हैव टू बी एजुकेटेड. करेक्ट, बट राजेश जी ये तो सारे पांडे फैलाते हैं. अभी काशी में पिछले महीने गया हूँ और 2 महीने पहले, तो वहाँ पर सुबह जी अगर आप 3 बजे पहुँच जाएंगे तो सारे पांडे आके धीरे से बोलेंगे साथ में स्पर्श दर्शन करना है, 1000 रुपये में करवाऊँगा जल्दी. और मैं भी आई ऑल्सो फेल इन टू दैट ट्रैप. देन वो इतना घिचपिच हुआ, आई सेड ब्लडी हेल विद यू गाइज, मुझे नहीं आना. और बार बार अप्रोच करे जा रहे थे. दे ऑल्सो न्यू किसको टारगेट करना है. मैं अपने बेटे के साथ I agree with you. I have seen terrible, and that is what I was telling you. I feel as a neutral individual, धर्म में सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ से आता है? It's not from the government. When the people who are supposed to do सेवा of the देवता, जो पुरोहित पांडा है,
उन लोगों में जब करप्शन आता है, करप्शन इज नॉट इन अदर सेंस, करप्शन ऑफ ग्रीड ऑफ मनी। आप देवता के सामने बैठ के आप ये गुन रहे हो कि ये देख रहे हो कि कौन 10 रुपया दे रहा है, कौन 500 रुपया दे रहा है, बिना यजमान को पूछे आप बोल रहे हैं मैं तो 5,000 का आपका संकल्प कर दिया, आप नहीं देंगे तो। सो यू आर प्लेइंग विद दैट। डू यू थिंक द डेटी इज अ फूल? उनको पता नहीं है कि आप यहाँ चीटिंग कर रहे हो यहाँ पे आके। तो ये करप्शन बिल्ड होते होते एक लेवल तक पहुँच जाता है। देन सडनली देयर इज समबडी फ्रॉम कोई सेंट्रल एशिया से आके मेरा शिवलिंग तोड़ के चला गया, मुझे पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है। तो मूर्ख तो आप हो, नेचर तो सिग्नल दे ही रहा था आपको, आपने देखा नहीं, आपका प्रॉब्लम है। पॉइंट इज आई फील अगेन नॉट टू एंटेगनाइज एनीबडी, एक टाइम आना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साधना पे रूटेड हो, जिसका कुछ नॉलेज है इस सब चीज़ के बारे में, consider it as a civil society or something like that, who should be giving advices on how these things should be run, who do not have a direct ऐसा नहीं कि उसको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वेरी बिग थिंग, जैसे मैंने बताया कि एल अगर वही चीज़ कर रहा है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट तो आएगा। अब पांडा विल ऑलवेज से कि क्यों बंद करना है, मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, ये वाला इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई एम नॉट सेइंग ऑल पांडाज आर लाइक दैट, आई एम श्योर देयर विल बी गुड पीपल ऑल्सो, बट देयर हैज़ टू बी सम बॉडी और सम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of impeccable integrity and honesty who will not benefit from this। उसको एक पैसा नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में, but they can set the regulation of the rules। अगर मेरे ऊपर रहता, मैं पहला चीज़ करता कि सब मंदिर के गर्भगृह में जो दान पेटी है उसको बाहर निकाल दो, एक पैसा नहीं जाएगा। Nobody should take one money inside the गर्भगृह of any temple, be it कामाख्या, be it शिवा, be it विष्णु, anywhere। जो पैसा देना है आप बाहर में दीजिए, गर्भगृह के अंदर नहीं देना है। वहाँ पे ये what happens is that the guna that is there, and I was talking to somebody and people, many traditional people get ये about it, but एक समय पे जो वर्ण व्यवस्था था, एक समय पे ये था कि the वर्ण you are born into taking just 4 वर्णस, और उसका जब कर्म करेंगे ये एक ही होगा, इसलिए क्योंकि आपका नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द गुना मैचेस विद द फैमिली यू आर बॉर्न इन, नेचुरल मैनिफेस्टेशन। अर्थात जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है उसमें ब्राह्मणत्व है, वो कर रहा है वैसे का। उसमें सबसे पहला चीज़ है कि देर इज़ व्हेन इट कम्स टू सेवा ऑफ द डेटी देर इज़ नो कैलकुलेशन चीज़ है, मेरे को फ़ायदा हो रहा है, मेरा 10 रुपये आ रहा है कि 50 रुपये आ रहा है, देन यू आर थिंकिंग लाइक इट्स अ मार्केंटाइल कॉन्शियसनेस, वैश्य। तो जो आप चाहे आपका जो भी वर्ण में आप पैदा हुए हो और जो काम कर रहे हो उसमें ये डिफरेंस अगर बहुत नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली ये बहुत होता है। सी नेचर इज़ वेरी रूथलेस, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको पसंद आए ना आए, आप कौन सा what lie you are telling yourself, nature doesn't care। You can't lie to energy। Exactly। और जब समय आता है वो डंडा तो लगेगा। So if this, and that is what happens unfortunately, that वो जो बैठा हुआ है वहाँ पे उसमें तो सबसे ज़्यादा श्रद्धा होना चाहिए। Just I know it's a lot। काफ़ी हालत ख़राब है अभी तो honestly। So इस काम को आगे बढ़ाना, ऐसी एक सोसाइटी बनाना which can govern this is a very very tall order in the current Hindu consciousness honestly। I don't look at it as something that you can do it. It is only when the devatas can do it, and I feel that पॉजिटिव साइड में बात करता हूँ, नेगेटिव तभी इतना तक बात हो ही गया है। आई फील दैट देर इज़ अ ह्यूज अपसर्ज ऑफ भगवान भैरव, ही हैज़ सम प्लान्स, बट आई हैव सीन रिमार्केबल अमाउंट ऑफ पीपल। तो हमारे जैसे जो कामाख्या भैरव उपासक फाउंडेशन के थ्रू माध्यम से हम लोग ये भी करते हैं, अष्टमी तिथिज में लोगों को बोलते हैं कि आप जप कीजिए भैरव बाबा का, सिंपल नाम मंत्र, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं, एक थोड़ा सा भोग रख के, एक दिया रख के आप इतने माला जप कीजिए। इन 1 year, एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई स्टार्टेड विद 2-3 फ्रेंड्स, कुछ मेरा प्लान नहीं था। वो चीज़ स्प्रेड करते करते लास्ट अष्टमी तिथि में मोर देन 1 crore जप ऑफ भैरव नाम मंत्र। इसमें किसी को ना एक पैसा मिला, आया तो मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू डू इट। आपको बाबा से कनेक्ट करना है, बाकी बाबा देख लेंगे, आप देख लेंगे। आई एम एट बेस्ट अ फैसिलिटेटर इन द प्रोसेस, और कुछ नहीं। अपने आप से 1 crore, और आई फील दैट 1 point it should come when 8 crore जप हैज़ टू बी डन, बिकॉज भैरव इज क्षेत्रपाला ऑल्सो। एक तो वो पारा भैरव भी हो सकता है, ये पूरा इंडिया एक क्षेत्र है, शक्ति का क्षेत्र है, और इसको आज 47 में इंडिपेंडेंस मिला है। आज के डेट में आप देखिए एक बॉर्डर दिखाइए जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, हो ही गया प्रॉब्लम। जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने वाले देवता है वो कहाँ है? 13th century के बाद तो आपने कुछ किया ही नहीं, वो गांव में एक छोटा मंदिर बना के रख दिया। उनको कहीं लाना पड़ेगा ना, परहैप्स इट इज़ हिज विल, बिकॉज देवता के विल से बिना नहीं होता। एज ए स्पिरिचुअल मैन आई फर्मली बिलीव दैट। तो कहीं इतना भी कर सकते हो तो शायद चेंज भी हो जाएगा लोगों के माइंडसेट में। तो ये जो आप टेंपल बिल्डिंग कर रहे हैं भैरव बाबा की, ये भी आपकी फाउंडेशन से ही कर रहे हैं? आर यू ओके कलेक्टिंग मनी फॉर इट ऑल्सो? एक्चुअली वी विल विदाउट द ये, क्योंकि मेरा ऑल आई हैव इज दैट एट दिस मोमेंट
मेरे को इंटरनल आर्किटेक्चर पता है, मीन्स मंदिर का जो बनेगा वो एक नहीं, देयर विल बी 11 deities, एक स्पेसिफिक विशेष कॉन्फ़िगरेशन में। कहाँ कहाँ बनाने? सो आई एट दिस मोमेंट आई स्टिल डोंट नो द फुल, मेरे पास आएगा, बट व्हाट आई फील इज दैट इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द बॉर्डर एरियाज। एक हम लोग पहले अभी बात चल रहा है मेरी टीम के साथ, आई विल बी गोइंग साउथ में एक जगह देखना है, वहाँ से चालू करने का एक प्लान मोर और लेस, बट इफ़ बाबा विल्स इट, इट विल हैव, आई नो, दो चीज़ मुझे पता है कि इंटरनल कौन कौन देवता का कैसे अरेंजमेंट होगा, कौन कौन सा यंत्र बनाना है और क्या पद्धति से वो पूजा होना चाहिए वहाँ पे। ये दो चीज़ अगर होता है बाय द विल ऑफ बाबा, 6 months to 1 year यू विल सी रिमार्केबल फिजिकल चेंजेस इन दिस लैंड। ये बाकी वो बाबा ही कर सकते हैं, बाकी किसी का औकात नहीं है ये करना, वो चाहते हैं तो वो करवा देंगे। सो लाइक दैट। With that thought, we'll end this conversation. Thank you very much. आप सब लोग प्लीज़ दो काम, एक तो इन विचारों को स्प्रेड करिए ताकि ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ऑफ पीपल आर एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट एंड सो फोर्थ, ये सब ना आए। यहाँ पर वो इंटेंट नहीं है जैसा राजेश जी ने बताया आपको। और दूसरा, प्लीज़ कंट्रीब्यूट विद योर वॉलंटियरिंग इफ़ यू आर अ डेवटी, लाइक इन्होंने कहा कि इतनी मंत्र जप करने से बहुत बेनिफिट होगा पूरे क्षेत्र को, भारत क्षेत्र को। और दूसरा, विद योर मनी contribute to the organization. We will put the links in this video, and please contribute in all ways. Thank you very much, Rajesh ji. Namaste.